43 of chapter 5, My Robot Robbie. So let's read the question. Answer these questions with reference to the text. Now one reference is given to us and some questions related to the reference are there, and we have to find out the answer of those questions. So let's read the first reference. Could you get me some milk? Question mark. क्या तुम मेरे लिए कुछ दूध ला सकते हो? Now this is the first reference. Now let's take the first question related to the reference. Question A is who said these words and to whom? Question mark. ये वर्ड्स किसने कहे हैं और किसे कहे हैं? Yes, tell me please. Yes, you know very well. Yes, you're right. Sunny said these words to Robbie. Full stop. Sunny ने ये words Robbie को कहे थे. Question B is how did the listener react? Question mark. Listener ने ये सुनकर कैसे react किया था? ये वाली statement, ये बात सुनकर listener ने कैसे react किया था? Listener कौन था? Robbie था. तो Robbie ने कैसे react किया था इस बात को? Yes. Let's see the answer. Robbie was obedient and he brought the milk. Full stop. Robbie जो था वो आज्ञाकारी था, बात मानता था और वो दूध लेकर आया. Right? Now next question. Question number C is did the speaker ask for anything else? Question mark. क्या स्पीकर ने किसी और चीज के लिए भी कहा था? Yes, tell me. स्पीकर ने दूध के साथ कुछ और भी मंगवाया था? Yes, you're right. The speaker asked for biscuits. Right? Now let's see the next reference. Now next reference is shouldn't we call a doctor? Question mark. And the question first related to this reference is who said these words and to whom? बेटा इसका मतलब हुआ क्या हमें डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहिए? Now who said these words and to whom? ये words किसने कहे थे और किसे कहे? हमने स्टोरी में रीड किया है. Yes, tell me who said these words and to whom? You know that? Yes, you are right. Sunny said these words to his father. Sunny said these words to his father. Right? Full stop. Next. Question B. Why did the speaker say these words? Question mark. Speaker ने ये words क्यों कहे थे? Who is the speaker here? Speaker is Sunny. Sunny ने ये बात कही थी, इसलिए अब वो question is why did the speaker say these words? Speaker ने ये बात क्यों कही थी? Yes. Let's see the answer. The speaker said these words because Robbie had been hit in the stomach by the cricket ball. Full stop. स्पीकर ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि जो रॉबी है उसको स्टमक में बॉल ने हिट कर दिया था, इसलिए वो एकदम फेंट होके गिर गया था. मतलब उसकी जो मशीनरी थी उसने वर्क करना बंद कर दिया था और वो एकदम गिर गया था. तो इसलिए स्पीकर ने ये बात अपने फादर को कही थी. राइट? क्वेश्चन नंबर सी इज whom did the speaker's father call? Question mark. Yes. स्पीकर के फादर ने किसे कॉल किया था? रोबोट को ठीक करने के लिए, रॉबी को ठीक करने के लिए स्पीकर के फादर ने किसको फोन किया था? यस, टेल मी. यस, द स्पीकर्स फादर कॉल्ड द रोबोट मैकेनिक. द स्पीकर्स फादर कॉल्ड द रोबोट मैकेनिक. स्टॉप. स्पीकर के फादर ने रोबोट मैकेनिक को कॉल किया. राइट? So that is all about question number A2. Now let's take the next question. Now let's take the vocabulary part. Question B1. Look at this robot. Full stop. Its name is Robot Blue. Full stop. Name its different part with the help of the hints one has been done for you. Now you can see एक रोबोट दिया है और रोबोट के साथ डिफरेंट एरोज़ के साथ कुछ बॉक्सेस बने. उन बॉक्सेस में हमें इनकम्प्लीट वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमें उन वर्ड्स को कंप्लीट करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक अपने राइट साइड में टॉप में देख सकते हैं एरो करके उन्होंने एंटीना पे एरो किया है और वहाँ पे ब्रैकेट में एंटीना फिल किया है. वैसे ही एंटीना के नीचे आप देख सकते हो एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के साथ उन्होंने एरो करके बॉक्स और बनाया है जिसमें बी लिखा है और ब्लैंक्स के साथ लास्ट में एन है. तो हमें इस वर्ड को कंप्लीट करना है. ओके,
So this is homework for you. I know you can do it yourself very well, right? Next question is, now out of the words given below, choose the words associated with the fridge. Now you can see येलो बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. इन वर्ड्स में से हमें उन वर्ड्स को ढूंढना है जो फ्रिज के साथ एसोसिएटेड है, जिनका फ्रिज के साथ कोई लिंक है, राइट? जैसे हमारे पास फर्स्ट वर्ड है फूड. तो फूड को आप कहाँ रखते हो? फ्रिज में रखते हो. टेबल, टेबल को फ्रिज में रखते हो? नहीं. नेक्स्ट इज़ फ्रूट. फ्रूट भी हम फ्रिज में रखते हैं. नेक्स्ट इज़ ड्रिंक. ड्रिंक्स भी हम फ्रिज में रखते हैं. फ्लावर्स को आप फ्रिज में रखते हो? नहीं. पेंसिल्स को भी नहीं रखते. योगर्ट होता है दही, उसको भी हम फ्रिज में रखते हैं. बुक्स को रखते हो फ्रिज में? नो. मिल्क को येस रखते हैं. मॉस्किटो को फ्रिज में रखते हैं? नो. सो जो हमारे राइट आंसर्स हैं उन्हें हमें इन 1 to 6 नंबरिंग के आगे राइट करना है, राइट? सो आवर आंसर्स विल कम in this way, right? You can see here. Next we are taking question C1, page 44-45, grammar portion, right? Now first of all tell me what is verb, or you can say action verb. Yes, we have already done this in class 2nd also. तो बताएं क्या होता है वर्ब, या जिसको हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं. ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू. अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब. वो शब्द या वो समूह, शब्दों के समूह जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं, उन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं, या उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, शोएब स्पीक्स प्रीटी वेल. अब स्पीक क्या है? एक्शन है. बोलना क्या है? एक्शन है. अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, तो आई एम डूइंग एक्शन, मैं एक्शन कर रही हूँ. तो यहाँ पे स्पीक जो है ये वर्ब है. शोएब स्पीक्स प्रीटी वेल, फुल स्टॉप. ठीक है, तो ये वर्ड स्पीक जो है ये वर्ब है, राइट? Now, example number 2, a horse gallops very fast. निगलना. घोड़ा बहुत जल्दी निगलता है. gallops मतलब वो भी एक एक्शन है. वो निगल रहा है तो वो अपने मुंह को हिला रहा है, एक एक्शन कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर a horse gallops very fast is a action. तो यहाँ पे word gallops जो है ये एक्शन. ठीक है. नाउ हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं बेटा, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. या तो हमारे सेंटेंसेस प्रेजेंट में होते हैं, या हमारे सेंटेंसेस पास्ट में होते हैं, या हमारे सेंटेंसेस फ्यूचर में होते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है. Now बेटा, first of all we need to understand what is present, past and future. हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि present, past और future होता क्या है. Present का मतलब है वर्तमान, आज, अभी. ठीक है. past का मतलब है भूतकाल, जो चीज़ हो गई, जो समय निकल गया. ठीक है. future का मतलब है आने वाला वक्त, या आने वाले समय में आप जो भी काम करोगे उसको हम फ्यूचर में काउंट करते हैं. जो काम आप कर चुके हो वो हम पास्ट में लेंगे, और जो काम अभी कर रहे हो आप, या करते हो, या रूटीन में करते हो, डेली करते हो, उसको हम प्रेजेंट में काउंट करते हैं. ठीक है. तो ना हमने 2 सेंटेंसेस लिए थे. शोएब स्पीक्स प्रीटी वेल. तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड स्पीक्स था वो वर्ब, राइट? और इस सेकंड सेंटेंस में है अ हॉर्स गैलोप्स वेरी फास्ट. यहाँ पे गैलोप इज अ वर्ब. Now, one thing you have noticed कि word तो speak है, S-P-E-A-K, speak. अब यहाँ पे सेंटेंस में speak के पीछे S लगा है. ठीक है. और यहाँ gallop है, G-A-L-L-O-P. वर्ब तो ये है, और इसके पीछे भी S लगा है, इसके पीछे भी S लगा है. You can see both these sentences. तो जब भी वर्ब के पीछे जो हमारे पास वर्ड वर्ब है, अगर उसके पीछे एस लगा हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस
कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप ये रूल याद रखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस की पहचान ये है कि वहां पे वर्ब के साथ एस का यूज होता है। राइट? क्लियर? नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। नाउ लेट्स रीड सम मोर एग्जांपल्स। शी वॉश्ड हर कार। अब यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो है वॉश। वॉश इज अ वर्ब, उसके पीछे हमने ईडी ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट ईयर कॉमा आई ट्रैवल्ड टू जयपुर। तो यहाँ पे हमारा जो एक्शन वर्ड है, ये ट्रैवल क्या है? वर्ड जो है ये ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब क्या होता है? ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। उसमें एक्शन हो रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, मूवमेंट हो रही है, तो दैट इज वर्ब। तो इसके साथ में हमने ईडी लगाया है। वर्ब इज ट्रैवल, उसके साथ हमने ईडी ऐड किया है। यहाँ पे वॉश करना, किसी चीज़ को धोना, तो उसमें क्या एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर वॉश इज अ वर्ब और ईडी उसके साथ हमने ऐड किया है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब के साथ ईडी ऐड हो जाता है, उन सेंटेंसेस को हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। ये सेंटेंसेस आपको ये बता रहे हैं कि ये काम हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। अभी हमने यहाँ पास्ट का मतलब क्लियर किया था कि पास्ट का मतलब होता है जो पहले वाले टाइम में काम हो चुका है या भूतकाल में काम हो चुका है। जो काम हम कर चुके हैं उसको हम पास्ट में लेते हैं। ठीक है? तो ये सेंटेंसेस जहाँ पे वर्ब के साथ ईडी ऐड हो जाएगा, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। राइट? और ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे वर्ब के साथ एस ऐड होता है, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखो फर्स्ट सेंटेंस है शोहेब स्पीक्स प्रीटी वेल। जो शोहेब है वो बहुत अच्छा बोलता है। तो बोलता है मतलब वो ये काम उसकी नेचर में है, नेचुरल है। तो ये एक प्रेजेंट काम है जो वो डेली करता है। वो डेली बोलता होगा, ऐसा तो है नहीं उसने एक बार बोला और बोलना छोड़ दिया। वो डेली बोलता है, तो वो एक कॉन्टिन्यूटी में होने वाला काम है, रेगुलर रूटीन में होने का वाला काम है, इसलिए उसको हम प्रेजेंट में काम करते हैं। अब हॉर्स गैलॉप्स वेरी फास्ट। अब जब हॉर्स खाना खाता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जब भी खाता है तो वो जल्दी ही निकलता है। तो वो भी उसकी हैबिट में है, रोज वो काम वैसे ही करता है। तो इसीलिए इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही काउंट करते हैं। राइट? आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। Now because there is one more thing you have to keep in mind. We do not add ed to every verb to change its tense to simple past. It means हम हर verb के पीछे ed ऐड नहीं करते हैं अगर हम उसे past में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है? इसका मतलब हुआ जरूरी नहीं है कि अगर past tense में हमारे verb दिया है तो उसके पीछे ed ही लगा होगा, क्योंकि कुछ पास्ट टेंस में जब हम वर्ब को कन्वर्ट करते हैं तो उनका फॉर्मेशन डिफरेंट होता है। सो लेट्स सी द फॉर्मेशन। सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब वर्ब आएगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, और सिंपल पास्ट टेंस में जब वर्ब आएगा तो उसको हम कैसे मेंशन करेंगे। अब हमारे पास वर्ब है अवेक। ठीक है? तो जो वर्ड अवेक है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अवेक ही आएगा। ठीक है? इसके पीछे हम एस लगा देंगे। अब जब हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे तो हम इसको अवेक नहीं लिखेंगे, अवोक लिखेंगे। यहाँ पे ईडी नहीं लगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ईडी नहीं लगा, यहाँ पे अवेक जो है वो अवोक में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है ब्रिंग। ब्रिंग का बन जाएगा पास्ट में ब्रॉट। सिंग का बन जाएगा सैंग। बेंड का बन जाएगा बेंड। राइट? अब बेटा कुछ हमारे पास वर्ब के फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी सेम रहते हैं और सिंपल पास्ट टेंस में भी सेम रहते हैं। इन सभी ऐसे हम वर्ब्स को इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इररेगुलर वर्ब्स। तो अब देखो जो बीट है वो प्रेजेंट में भी बीट रहेगा और जब उसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो भी बीट रहेगा। ब्रस्ट, प्रेजेंट में भी ब्रस्ट है और पास्ट में भी ब्रस्ट है। क्विक, पास्ट में भी क्विक है। नेक्स्ट इज कट, पास्ट में भी कट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे।
ठीक है, नाउ लेट्स टेक द एक्सरसाइज. This question is on page number 45. Fill in the blanks with the correct forms of the verb in the brackets. बेटा ब्रैकेट में हमें वर्ब्स दिए गए हैं. अब इन वर्ब्स की हमें करेक्ट फॉर्म को इन सेंटेंसेस में फिल करना है. हमें सेंटेंस रीड करना है और चेक करना है यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, प्रेजेंट आएगी या पास्ट आएगी, और उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे उन्हें फिल करना है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज अमित तिवारी डैश एट द कॉन्सर्ट टुडे. बेटा कॉन्सर्ट होता है जहाँ म्यूज़िक के प्रोग्राम्स को परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, आर्टिस्ट जो हैं, कलाकार जो हैं, वो म्यूज़िक के परफॉर्मेंस देते हैं. राइट. तो हमारा सेंटेंस है अमित तिवारी ने कॉन्सर्ट में आज डैश किया, और हमारा वर्ब है परफॉर्म. परफॉर्म का मतलब होता है पार्टिसिपेट किया. तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि वो परफॉर्मेंस परफॉर्म कर चुका है, मतलब पास्ट में चली गई है ये बात. तो जब पास्ट में हम वर्ब की फॉर्म को लगाएंगे तो उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? यस, उसके साथ परफॉर्म की जो पास्ट फॉर्म है उसको परफॉर्म से वो परफॉर्म्ड में कन्वर्ट हो जाएगी. सो द राइट आंसर इज परफॉर्म्ड. PERFORMED. नेक्स्ट सेंटेंस इज द एंग्री टीचर डैश एट द किड. गुस्से में टीचर ने किड पे क्या किया? एंड द वर्ड इज शाउट. शाउट का मतलब होता है चिल्लाना. तो गुस्से में टीचर ने शाउट किया. तो किया मतलब पास्ट में किया, उसने, हो चुकी है ये बात. तो यहाँ पे शाउट की पास्ट फॉर्म शाउटेड आएगा. राइट. क्या आएगा? शाउटेड. नेक्स्ट वी हैव आमिर डैश द टोस्ट बिफोर ईटिंग. आमिर ने खाने से पहले टोस्ट को क्या किया? हमारे पास वर्ब है बटर. सो यहाँ पे खाने से पहले मतलब पास्ट में क्या किया उसने? यस. तो यहाँ पे बटर की पास्ट फॉर्म आएगी. राइट. बटर की पास्ट फॉर्म है बटर्ड. BUTTERED. राइट. नेक्स्ट इज यस्टरडे कॉमा समीर डैश अ कार फॉर द फर्स्ट टाइम. अब बेटा यस्टरडे का मतलब होता है पिछला कल जो बीत चुका है. ठीक है. समीर डैश ए कार फॉर द फर्स्ट टाइम. समीर ने कार को फर्स्ट टाइम क्या किया? हमें ब्रैकेट में वर्ब दिया है ड्राइव. ड्राइव का मतलब आपको पता है कि कार को चलाना इज ड्राइव. तो इट मीन्स यस्टरडे कल समीर ने कार को पहली बार चलाया. तो ये पास्ट मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है. तो यहाँ पे ड्राइव की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट फॉर्म. तो ड्राइव की पास्ट फॉर्म होती है ड्रोव. DROVE. राइट. नेक्स्ट वी हैव शबनम डैश ऑयली फूड. और ब्रैकेट में हमारे पास वर्ब है हेट. हेट का मतलब होता है नफरत करना. शबनम ऑयली फूड से क्या करती है? हेट करती है. सो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. तो यहाँ पे हेट के साथ क्या लग जाएगा? हेट के साथ एस लग जाएगा. तो शबनम हेट्स ऑयली फूड. लास्ट सेंटेंस इज हैव यू डैश एलिस इन वंडरलैंड. एलिस इज वंडरलैंड इज द नेम ऑफ द बुक. इट मीन्स क्या तुमने एलिस इन वंडरलैंड. अब ब्रैकेट में देखो हमारे पास वर्ड है रीड. पढ़ी है. तो दैट मीन ये पास्ट की बात हो रही है. तो यहाँ पे रीड की पास्ट फॉर्म रेड आएगी. रेड के स्पेलिंग भी सेम होते हैं READ. राइट. दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप concept of simple present tense and simple past tense is clear to you. Good day. Goodbye.